Hello students, here is your Krishna ma'am and today we are going to talk about your chapter 12 Turkish invasions in North India. First of all, who were Turks? Turks belong to East and Central Asia and they were considered as the tribes. मीन्स खाना बदोश की तरह ये लोग जीवन यापन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. And in this chapter we will talk about two Turk invaders, Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. First of all, what were the reasons? Why they attacked India? First reason is frequent wars among Rajputs. In previous chapter we have studied that in the beginning of medieval period there were three main kingdoms in North India: Rashtrakutas in Maharashtra, Gurjar Pratiharas in Gujarat, and Palas in Bengal, and they were engaged in frequent wars. This weakened the power of these kingdoms, and in the whole North India the Rajputs became the powerful and they ruled over North India. But Rajputs also engaged in frequent wars, and this weakened their power, and the foreign invaders took the benefit of this situation. Second reason was great wealth of India. At that time India was really a very rich country, and this also attracted the foreign invaders. So first of all we will talk about Mahmud Ghazni. Abbasid Caliph of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. सबसे पहले बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे उन्होंने ही तुर्कों को अपने यहाँ पर गार्ड या प्रोफेशनल सोल्जर्स के तौर पर भर्ती करना शुरू किया था. एंड व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी बिकेम वीक दे टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस. आफ्टर सम टाइम दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द इंडिपेंडेंट किंगडम. और ऐसा ही एक गवर्नर था सुबुक्तगीन. उसने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा लेकर अपने आप को गजनी का रूलर घोषित कर दिया. और महमूद गजनी वाज द सन ऑफ सुबुक्तगीन. महमूद गजनी वाज बोर्न इन 971 एंड ही ascended the throne in 998. Ghazni was a small, hilly and poor region at that time. Mahmud Ghazni was very ambitious and he wanted to make Ghazni a powerful empire. First of all, he gained the control of Afghanistan, then he attacked India. He invaded 17 times in India during 1000 to 1027. और इन 27 सालों के दौरान जो उसने ये 17 आक्रमण किए, ये सभी आक्रमण उसके भारत के मंदिरों पर थे, क्योंकि भारत के मंदिरों में उस समय बहुत सारा धन था और उसने मंदिरों पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन वो यहाँ से लूट कर ले गया. His most destructive attack was on Somnath temple in 1025, and he broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees. 20 million rupees की प्रॉपर्टी उसने अकेले यहाँ सोमनाथ के मंदिर से लूटी और यहाँ से बहुत सारा धन लूट कर वो वापस चला गया. सो नाउ रिजल्ट्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन, जो उसने भारत पर आक्रमण किए उसके क्या रिजल्ट निकले. फर्स्ट, एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स. सबसे पहला तो भारतीय शासकों की जो कमजोरी थी वो एक्सपोज हो गई. उसने 17 आक्रमण किए, हर बार इतना सारा धन वो यहाँ से लूट कर ले गया, लेकिन कोई भी शासक उसे रोक नहीं पाया. इससे भारतीय शासकों की जो कमजोरी है वो एक्सपोज हुई. सेकेंड, ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्टेड मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया. भारत इतना धनी प्रांत था और बहुत सारे जो मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, इसलिए वो भी यहाँ सेटल हुई.
Third, great loss of Indian heritage. He broke the temples and idols of god and goddesses, and it was really a great loss of Indian heritage. Now, Muhammad Ghori. Muhammad Ghori was the ruler of Ghor. And the credit of the founding of Muslim empire in India goes to Muhammad Ghori. And he was defeated in the first battle in Tarain by Prithviraj Chauhan in 1191. But after 1 year he came back, and there was second battle of Tarain, and in this battle Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, and he established the Muslim rule in India. And after some time he returned back, and he appointed Qutubuddin Aibak as deputy, and the Muslim rule, or we can say the Slav dynasty, started in India. Here there was a difference in the aim of both the invaders. The main aim of Mahmud Ghazni to attack India was to loot or plunder the wealth of India. But the main of Muhammad Ghori to attack on India was to expand his empire. And he established the Muslim rule in India. And now we will talk about the regions responsible for the defeat of Indian rulers. First is, some Rajputs rulers helped the Turks. कुछ राजपूत रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने तुर्कों की मदद की, क्योंकि राजपूत रूलर्स में यूनिटी नहीं थी। और जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया तो उस समय सभी राजपूत राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि कन्नौज का जो शासक था जयचंद, उसने तो मोहम्मद गोरी का साथ दिया राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हारा और मोहम्मद गोरी जीत गया। सेकंड इज फ्यूडल सिस्टम। उस समय सामंती व्यवस्था थी, राजा सामंत नियुक्त करते थे। ये सामंत राजाओं को लैंड रिवेन्यू का कुछ हिस्सा देते थे और राजाओं के लिए सेना तैयार करते थे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो बहुत ही कम जो लगान है वो राजाओं को देते थे, ज़्यादातर अपने पास रखते थे, और सेनाएं भी उन्हीं के अधीन होती थी जिनको वो ट्रेन करते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो सेना तैयार करते थे वो अनट्रेंड होती थी, एक तो उनको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। दूसरा, बहुत सारे लॉर्ड्स तो ऐसे थे जो राजाओं से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और कई जगह ऐसे लॉर्ड्स इंडिपेंडेंट किंगडम भी अपने इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो ज़रूरत के टाइम ये शासकों का साथ नहीं देते थे। नेक्स्ट इज वीक आर्मी, क्योंकि सामंत उस समय सेनाएं तैयार करते थे और सामंत अपने लोगों को काम पर लगा कर रखते थे, खेती में लगाते थे विशेषकर, और उनको प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो नहीं देते थे। तो इस तरह की जो आर्मी है वो एक ट्रेन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाई। नेक्स्ट, ओल्ड मेथड्स ऑफ वार। उस समय भारतीय शासक ओल्ड मेथड ही यूज़ कर रहे थे। मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करने आया उसके पास तेज़ गति से दौड़ने वाले घोड़े थे, लेकिन हमारे शासकों के पास, मेनली पृथ्वीराज चौहान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनके पास हाथियों की सेना थी। अब हाथी ना तो तेज़ गति से मुड़ सकते हैं और ना ही तेज़ दौड़ सकते हैं, यहाँ तक कि जब वो वापस होते हैं प्रहार की वजह से तो अपने ही सैनिकों को भी कुचल डालते हैं। दीज वर द रीजन्स व्हाई द Rajput rulers defeated and the foreign invaders got victory over India
and they became successful in their aims. So this was all about your this chapter, beta. Goodbye, take care, and we will see in the next one.